So last time we discussed about the communicable diseases, that how these diseases, they are spread through air, water, okay, and from the infected person, what are the carriers or what are the vectors that are involved in this process. Okay, so humans में हमने discuss की थी, हमने animals में discuss की थी. Okay, there is a chart for the spread of the diseases, okay, by which of the causative agent, और उसमें आपने क्या क्या preventions लेनी है. ठीक है, तो ये क्लियर कट आपकी एनसीईआरटी में भी चार्ट बना हुआ है, तो देख लेते हैं ये चार्ट. सो देयर आर द डिजीज. ओके, तो नेक्स्ट इज देयर मोड ऑफ स्प्रेड, और सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिख लेते हैं. कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो इनको स्प्रेड करते हैं. ओके, कैसे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कैसे ये जो है वो ट्रांसमिट होते हैं. एंड द लास्ट इज व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स वी हैव टू टेक. So the chart will be easily available to you in your NCERT book. Okay, तो discuss कर लेते हैं एक बारी. So the first one is TB, tuberculosis. Disease is tuberculosis. ठीक है, तो tuberculosis आपको पता है that is spread from the bacteria. You all are familiar? Yes, familiar हो ना ये TB से. इसकी ad भी बहुत आती है that this is very much spread by the bacteria. Okay, so tuberculosis that is spread by the bacteria. Mode of transmission, ठीक है, that is spread through the air. That is spread through the air. Next is measles. Preventive measures हम सबके same लिखेंगे. Okay, next is measles. Measles, they are spread by the virus. Again, they are spread through the air. Next is chicken pox. Okay, chicken pox, it can also be spread through the viruses. या air में से भी आ सकता है, और through the direct contact with the infected person. Okay, so this is for the chicken pox. Chicken pox के बाद polio. Polio again that is spread by the virus. Okay, here also that can be from the air and water. Now you have to tell me what preventive measures you can take in this process. इन चारों में preventive measures same है, क्या क्या हो सकते हैं. अगर किसी को चिकन पॉक्स है, मीजल्स हैं, ट्यूबरक्लोसिस हैं, तो हमने क्या करना है. We have to stay away from them. ठीक है, हमने उनसे दूर रहना है, right? So you should be staying away from them. You should cover your face properly. ठीक है, ताकि जहां जहां से भी आपके ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आपके बॉडी में एंटर कर सकते हैं. ओके, सो यू शुड बी कवरिंग देम. यू शुड स्टे. ओके, वेरी गुड. सेट देम इन आइसोलेशन. उनको आइसोलेट कर दो बिल्कुल, राइट. एंड प्रॉपर वैक्सीनेशन फॉर देम टिल दे आर नॉट रिकवर्ड फुल. ओके, तो जब तक वो पूरी तरह रिकवर नहीं हो जाते हैं तब तक उनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन एंड प्रॉपर आइसोलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट इज कॉलेरा. ओके, ओके, नेक्स्ट इज कॉलेरा. अगेन दे आर सम कॉमन वन. ठीक है, कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, दे ऑल आर स्प्रेड थ्रू दी बैक्टीरिया. तो ये दोनों जो हैं वो बैक्टीरिया से ही स्प्रेड होते हैं आपके. ओके, एंड देयर एजेंट्स और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, जो आपका कॉलेरा है दैट इज स्प्रेड थ्रू दी वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर. ओके, एंड इट कैन बी आल्सो फ्रॉम द फूड.
एंड अबाउट द टाइफाइड, ठीक है, तो दैट कैन बी फ्रॉम द वाटर। अगेन प्रिवेंशन जो है वो सेम है, अगर पानी से या फूड से फैल रहा है तो दैट मीन्स यू शुड बी कवरिंग योर फूड आइटम्स प्रॉपरली, ठीक है, मेंटेन हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, गुड सैनिटरी कंडीशंस होनी चाहिए, ओके, यू शुड बी ऑप्टिंग फॉर द गुड सैनिटरी कंडीशंस, यस, ड्रिंकिंग वाटर को प्रॉपरली आपने क्या करना है, प्योर करना है, राइट, so vaccination is very very important, okay, so these can be the various methods by which you can prevent it, right, maintain personal hygiene, good sanitary conditions होनी चाहिए, properly cooked food खाओ, ठीक है, अगर वो फूड से भी हो रहा है that means microorganisms जो हैं they are not properly killed, right, so properly cooked and boiled food and water you should consume, okay, coming to the next is yes, इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज हेपेटाइटिस ए, दैट इज स्प्रेड फ्रॉम द वायरस, hepatitis A that is spread from the virus, okay, and here we will be talking about the mode of transmission as water. Again what can be the prevention, अगर पानी है तो boiled water you should be taking, okay, and you should be proper vaccinated from the hepatitis A, okay, तो proper sanitary proper vaccination होनी चाहिए, okay, and you should be consuming the boiled water. Now the last is malaria. You know malaria is caused by the yes protozoa, last time भी करवाया था मैंने, प्लाज्मोडियम। कैसे ट्रांसमिट होता है, मॉस्किटो से, तो मॉस्किटोस को आप कैसे दूर भगा सकते हो, यू कैन यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स, नेट्स यूज कर सकते हो, ठीक है, स्प्रेस, प्रॉपर रिपेलेंट्स यू कैन यूज, स्प्रे कर सकते हो आप उनसे बचने के लिए, ओके, यस, सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन यूज। So these were the list where we have discussed about the various diseases and their basically modes of transmission by various microorganisms, okay. Now in the same way we will be discussing these same in case of plants also, तो plants में भी discuss कर लेते हैं कि plants में भी कौन कौन से microorganisms जो हैं वो attack करते हैं। तो सेम डायग्राम आपको मिल जाएगा फॉर प्लांट्स आल्सो, ओके, दैट इज आल्सो देयर इन योर एनसीईआरटी। अब प्लांट्स में सबसे पहले जो डिजीज आता है दैट इज सिट्रस कैंकर, द डिजीज इज सिट्रस कैंकर, CANKER, मैं इधर लिख देती हूँ। सिट्रस वर्ड आपको पता होगा, दैट इज यूज्ड फॉर द सिट्रस फ्रूट्स जिसमें सिट्रस एसिड होता है, ठीक है, जैसे आपका लाइम हो गया, लेमन होते हैं, ग्रेप्स होते हैं, दे आर द सिट्रस फ्रूट्स, ऑरेंजेस, तो इनमें ये मेनली होता है, ओके। द माइक्रोऑर्गेनिज्म इज बैक्टीरिया एंड इट कैन स्प्रेड थ्रू एयर, तो मोड है इसका एयर, तो ये सारे सिट्रस फ्रूट्स में जो है वो स्प्रेड कर सकता है, ओके, स्पॉट्स बन जाते हैं, पैचेस बन जाते हैं वहां पे। नेक्स्ट इज रस्ट ऑफ व्हीट, दैट इज स्प्रेड थ्रू फंजाई, rust of wheat is spread through fungi, okay, and their modes can be air or seeds, infected seeds जो है वो spread करेंगे तो भी इसको affect करेंगे, okay, right, coming to the next is after rust of wheat, coming to the next is yellow vein mosaic of okra,
You know भिंडी is also known as okra. Okay, तो ये plant में diseases हैं, right? So this is a disease that is actually present in the plant. Okra means भिंडी. Okay, okra को और क्या कहते हैं हम? भिंडी भी कहते हैं, right? That is also caused by the virus, and this is spread through the insects. And this is spread through the insects. ये insects से फैलता है. Okay, तो ये हो गए हैं plants के. इससे पहले हमने human beings वाले डिस्कस कर लिए हुए हैं. कल मैंने आपको animals वाले भी करवाए थे. ठीक है, anthrax disease बताया था, foot and mouth disease in case of cattle also. ओके, तो एनिमल्स में दो डिजीजेस हैं, एक एंथ्रैक्स है एंड द सेकंड इज फुट एंड माउथ डिजीज. ओके, सो एंथ्रैक्स दैट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया से स्प्रेड होता है. मैंने आपको बताया था कैटल्स में होता है ये मेनली. ओके, and foot and mouth diseases that are caused by the viruses. और ये वायरस में होता है. ठीक है, ये वायरस से होता है. and their transmission is by direct contact. दोनों जो है वो कांटेक्ट से होंगे. So we have done the various diseases, we have done the various positive agents, and we have done, okay, that how they are going to spread. Right? Any doubt, beta? Okay, now the next question is कि ये इतना सब जो है हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कर रहे हैं, ओके, आर दे अफेक्टिंग आवर फूड आइटम्स आल्सो? Are they affecting our food items also? Yes. Are these microorganisms, they are affecting our food items? Yes. So the next topic is food poisoning. So the next topic is food poisoning. This is our next topic now. Okay. So we know that the microorganisms, they are affecting us in number of ways, okay, but they are also affecting our food items if they are left uncovered. अगर आपकी food items जो है वो uncovered पड़ी हुई हैं, तो you know fungal spores they are present. Fungal जो है, fungi जो है, their spores are present each and every time in the air. Okay, some bacteria they are present in the air. तो ये जो air में ऐसी चीजें पड़ी हुई हैं microorganisms, they will get a chance, okay, to survive on your food items, right? So in this way they will be affecting your food and they will be releasing some of the toxic substances. तो इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस के कारण जो आपका फूड है उसमें से फाउल स्मेल आ सकती है, गंदी स्मेल आ सकती है. आइदर इट्स कलर कैन चेंज, उसका कलर चेंज हो सकता है, उसका टेक्सचर चेंज हो सकता है. ठीक है, स्मेल जो है आप उसको स्मेल करके भी देख सकते हो कि क्या उसमें से कोई अनप्लीजेंट स्मेल आ रही है कि नहीं. ठीक है, और टेस्ट करके भी देख सकते हो whether it is giving you a bad taste or not, right? So food poisoning is a situation when microorganisms they actually land on the uncovered food items or they can grow on the food items, okay, and then they will be releasing some of the toxic substances on your food items, giving foul smell, either changing their color, texture or taste. So some of the bacteria that can cause, yes, so if you taste or if you consume this food, right, so it can cause you some of the situations like आपको vomiting आ सकती है. Okay, so food poisoning is either marked when you are not feeling healthy
Okay, if you are vomiting again and again, you are having fever, headache. Okay, उसके बाद you can either suffer from the situations of diarrhea also. ओके, नॉस्टैल्जिक फील करो आप, बहुत ज्यादा हेडेक है, वॉमिट कर रहे हो बार बार. ओके, सो ऑल दीज पेन है आपके, राइट, आपके स्टमक में पेन है, एब्डोमिनल पेन. सो ऑल दीज सिचुएशंस दे मार्क द फूड पॉइजनिंग सिचुएशंस. तो फिर ऐसे होता है कि आपको फूड पॉइजनिंग हो चुकी है बिकॉज यू हैव कंज्यूम्ड द टॉक्सिक फूड मटेरियल्स. ओके, एंड द वेरियस बैक्टीरिया दैट कैन कॉज द फूड पॉइजनिंग, तो ये मैंने आपको बताए हुए हैं. क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया, एंड बोथ द फंजाइज पेनिसिलियम एंड एस्परगिलस. ठीक है, तो बैक्टीरियाज एंड फंजाई दे आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड पॉइजनिंग. तो इसमें फंजाई हम बात कर लेंगे, एस्परगिलस की. ठीक है, पेनिसिलियम दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड पॉइजनिंग सिचुएशंस. ओके, एक्चुअली होता क्या है, फाउल स्मेल क्यों आती है, क्योंकि सम ऑफ द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इट गोज ऑन. आपके फूड में जो सब्सटेंसेस होती हैं वो केमिकली चेंज्ड हो जाती हैं, क्योंकि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस कर देते हैं. ओके, तो आपके जो फूड की केमिकल कॉम्पोजिशन है वही चेंज हो जाती है. योर फूड इज नो लॉन्गर दैट वन, द ओरिजिनल वन. तो उसमें कुछ केमिकली सब्सटेंस जो है वो चेंज आ जाता है. ओके, सो ड्यू टू विच यू फील सच टाइप्स ऑफ सिचुएशंस, राइट. अब मैंने अपने फूड को बचाना है, आई हैव टू प्रिजर्व माय फूड, राइट, फ्रॉम दीज बैक्टीरियाज एंड फंजाई. सो व्हाट शुड आई ऑप्ट? आई शुड गो फॉर द फूड प्रिजर्वेशन, राइट. आई शुड गो फॉर द प्रैक्टिसेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. Where I am going to preserve my food. See, bacteria, they can't grow in the conditions if the temperature is low or high and if the conditions are dry. अगर conditions dry हैं या टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा लो है, तो उस केस में जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे कांट सर्वाइव. दैट मीन्स दे नीड मॉइस्चर फॉर देयर सर्वाइवल. ओके, दे नीड मॉडरेट कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर. तो अगर हम ये कंडीशंस बरकरार रखें, हम टेम्परेचर को लो रखें, हम टेम्परेचर को बहुत ज्यादा हाई करके रखें और उसको ड्राई कंडीशंस में रखें, so that they are not getting enough water, okay, so then we can actually preserve our food items. So now the process by which you will be preserving your food from the spoilage by the microorganisms, by the bacteria and fungi, this process is known as food preservation. ठीक है, तो आपको 1 मार्क में पूछ लेते हैं what is food poisoning and what is food preservation. तो फूड प्रिजर्वेशन में आप अपने फूड को प्रिजर्व कर रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक्शन से, जिसके कारण वो आपके फूड को स्पॉइल ना कर पाए. ओके, नाउ देयर आर मेनी वेज ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, राइट. सो यू कैन रेज योर हैंड इन ऑर्डर टू गिव द आंसर फॉर फूड प्रिजर्वेशन एक्टिविटीज दैट यू मोस्टली ऑप्ट इन योर हाउसेस. ओके, हरमन, यस. Ma'am, we must cover our food. Okay, covering of food items. Yes, ma'am. Okay, covering. Proper covering of the food items. Hanji, Sanvi. Yes. Ma'am, we can keep the food in fridge so that high temperature. Okay. रेफ्रिजरेशन में जो आपका टेम्परेचर है वो लो हो जाएगा. तो आपने पढ़ा है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो लो टेम्परेचर पे और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे सरवाइव नहीं कर पाते हैं. पढ़ा है ना हमने, वी हैव डन दिस थिंग. ठीक है, जब हमने कर्ड की एग्जांपल की थी कि जो हमने कर्ड है,
ठीक है, वो बहुत ज्यादा हॉट वाटर में और बहुत ज्यादा मिल्क में नहीं ऐड करना है। क्यों? क्योंकि कोल्ड होगा, मिल्क अगर कोल्ड है तो उसमें भी जो आपके लैक्टोबैसिलियस हैं, ठीक है, द बैक्टीरियाज, दे विल नॉट बी एबल टू वर्क प्रॉपरली। अगर बहुत ज्यादा हॉट है तो जो आपके लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरियाज हैं वो मर जाएंगे, दे विल बी किल्ड। यस तरन्या। Food can be stored in airtight cans to prevent reinfection by microorganisms. एयरटाइट कंटेनर्स, जैसे मैंने आपको बताया that fungal pores they are always present in the air, okay, and when they get suitable conditions they will grow on the things, okay. So if you are keeping them in airtight container, you are not letting them to move on your or to grow on your food items, okay. Yes Akul. Ma'am, by using common salt. By using salt, sugar also, ठीक है, ये दोनों क्या काम करते हैं, ये डिहाइड्रेशन का काम करते हैं, पानी रिमूव कर देते हैं, पानी एलिमिनेट कर देते हैं, ओके। सो कंडीशंस को ड्राई कर देते हैं जिसके कारण माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और आई कैन ऑल्सो सी आरीश ने लिखा है ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन ऑफ फूड। तो कई बार आप ऐसे करते हो कि आप उन फूड आइटम्स को इफ यू वांट टू प्रिजर्व देम फॉर लॉन्गर टाइम आप उनको ड्राई कर लेते हो, सन ड्राई कर लेते हो, ऐसे ही है ना। तो सन ड्राई करने से उनका जो वाटर का कंटेंट है वो कम हो जाता है एंड दे कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्गर टाइम। यस आदिश, वेरी राइट। केमिकल मेथड्स, अगर आपने इफ यू आर हैविंग सम ऑफ द फूड आइटम्स एट योर होम, ठीक है, कन्फेक्शनरी जो होती हैं, बिस्किट हैं, चिप्स हैं, ठीक है, ये आइटम्स जो हैं अगर आप देखो तो उनके पीछे लिखा होता है प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड, ओके। सो केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हम प्रिजर्वेटिव्स ऐड करते हैं, ओके। सो सम ऑफ द प्रिजर्वेटिव्स दे इंक्लूड सोडियम बेंजोएट, सिट्रिक एसिड। तो इनके नेम्स याद रखने हैं आपने, दे आर गिवन इन द एनसीईआरटी। Okay, so you can be asked which chemicals you can use in order to prevent the microbial activity. So sodium benzoate है, citric acid है, you can also use potassium metabisulfite. Potassium metabisulfite. Okay, so these are the chemicals that we will be using in order to prevent the food, okay. Yes, pickles में हम इसमें विनेगर्स भी ऐड कर सकते हैं प्रिजर्वेटिव्स में, ठीक है। विनेगर इज एसिटिक एसिड एक्चुअली। तो आप देखते हो कि आपके पिकल्स में एसिटिक एसिड विनेगर डालते हैं, ठीक है, साथ में सॉल्ट डालते हैं, शुगर, राइट, शुगर्स भी जो है वो ऐड होती हैं आपके पिकल्स में। by adding oil also, very good. ऑयल भी जो है वो वाटर को एलिमिनेट कर देता है, ओके, वाटर इज ऑल्सो एलिमिनेटेड विद द हेल्प ऑफ ऑयल। तो शुगर हो गए, ऑयल हो गए, विनेगर हो गए, ठीक है। आपके मीट भी जो है उनको भी प्रिजर्व करने के लिए यू यूज ऑयल और सॉल्ट, ओके। तो जो मीट होता है उसको लॉन्ग टाइम प्रिजर्व करने के लिए आप उसको क्या कर सकते हो, सॉल्ट लगा सकते हो उसके ऊपर, मीट फिशेस को प्रिजर्व करने के लिए, ओके। हाँ जी, शुगर में जो आपके जैम्स आते हैं, आप देखते हो कि जो आप जैम्स लाते हो वो काफी टाइम तक चलते हैं आपके घर में, राइट, ओके। सो व्हाई सो, बिकॉज द प्रिजर्वेटिव्स आर एडेड इन इट। शुगर से भी क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, जैम्स हैं, जेलीज हैं, आप स्क्वैशेस लाते हो घर में, ठीक है, समर सीजन में आप स्क्वैशेस को यूज करते हो। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? पैकिंग कर दिया हमने, ड्राइंग, डिहाइड्रेशन,
ठीक है, एयर टाइट कंटेनर में या वैक्यूम पैकिंग कर दी है। ओके, व्हाट एल्स? कूलिंग भी कर ली, रेफ्रिजरेशन में कूल कर लिया है बाय हीटिंग, वेरी गुड। आप उसको दोबारा से हीट कर लो और सिंपली हीट करो। ओके, नाउ देयर इज वन मोर मेथड, there is one more method अब heating and cooling, they are the two separate methods. Okay, there is one more method in which we will be doing the heating, in which we will be doing the heating followed by cooling, in which we will be doing the heating followed by cooling. मतलब पहले हमने उसको हीट कर देना है, बाद में हमने उसको क्या कर देना है, कूल कर देना है. सो दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर द मिल्क. जो आपके घर में सिंपल मिल्क आता है, आप उसको हीट करते हो ना, जहां से भी आप लेके आते हो, आप लाके पहले उसको हीट करते हो इन ऑर्डर टू किल ऑल द बैक्टीरियाज, राइट. बट हैव यू एवर थॉट कि जो आपके पास पैकेट्स में मिल्क आता है, ओके, जो आपके पास पैकेट्स में मिल्क आता है, आप उसको ऐसे ही कंज्यूम कर सकते हो. व्हाई? बिकॉज दैट मिल्क इज एक्चुअली पेस्चराइज्ड मिल्क. तो वो सिंपल मिल्क नहीं है, दैट इज एक्चुअली पेस्चराइज्ड मिल्क. Okay, and this phenomena of pasteurization, it was discovered by Louis Pasteur. It was discovered by Louis Pasteur in 1862. This process is known as pasteurization. अब pasteurization में हम करते क्या हैं, हम अपने मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं फॉर 15 to 30 सेकेंड्स. 15 से 30 सेकेंड के लिए हम अपने मिल्क को 70 डिग्री सेल्सियस पे क्या करवाते हैं, हीट करते हैं. ओके, फिर उसके बाद हम उसको इमीडिएटली फॉलोड बाय कूलिंग, मतलब इमीडिएटली हम उसको कूल करवाते हैं. ओके, ये हो गया हीटिंग. आफ्टर हीटिंग वी विल बी कॉन्सिक्वेंटली, उसके साथ ही हमने उसको क्या करवाना है, कूल करवाना है टिल 10 डिग्री सेल्सियस. तो हम उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक क्या करवा देते हैं, कूल करवाते हैं. अब हीटिंग ने भी क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है. कूलिंग ने भी क्या करना है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करना है. तो हीटिंग में ये होता है कि आप बहुत ज्यादा हीट कर देते हो तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो नहीं सर्वाइव कर पाते इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, और वो किल हो जाते हैं. ओके, बट जो किल नहीं हुए हैं हीटिंग से, फिर हम उनको ठंडा करके कूल करके फिर हम उनको किल कर देते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हीटिंग फॉलोड बाय कूलिंग. ये नहीं है, ठीक है, साइमल्टेनियसली ये दोनों करने हैं. हीटिंग फॉलोड बाय कूलिंग, पहले गर्म करो, साथ में ही उसको ठंडा कर देना है हमने. ओके, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज पेस्चराइजेशन, राइट. फिर आपका जो मिल्क है उसको बॉटल्स में पैक किया जाता है या पैकेट्स में पैक किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, राइट, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दे आर एक्चुअली किल्ड इन दिस प्रोसेस. सो दिस मिल्क इज नोन एज पेस्चराइज्ड मिल्क. ओके, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज पेस्चराइजेशन. तो फूड प्रिजर्वेशन के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं बेटा आपको? व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन? एक तो हमारा खाना बच जाता है, वेस्ट नहीं होता है. ओके, दैट एक्चुअली प्रिवेंट्स द वेस्टेज ऑफ द फूड आइटम्स, राइट. ओके, स्टोरेज जो है वो प्रॉपरली हो जाती है, उन फूड आइटम्स को आप प्रॉपरली स्टोर कर सकते हो, राइट. न्यूट्रिशन वैल्यूज की इंक्रीज हो जाती है, वेरी गुड, राइट. प्रिजर्व कर सकते हो आप उनको, रिटेन कर सकते हो, उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो एज इट इज रहती है. ओके, एंड समटाइम्स कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको आउट ऑफ सीजन नहीं मिलती हैं, तो अगर आप उनको ड्राई करके घर में रख लेते हो एक पर्टिकुलर सीजन के लिए, तो अगर आपको दूसरे सीजन में चाहिए जहां पर वो नहीं अवेलेबल है, तो यू कैन इजीली यूज देम. ओके,
तो विंटर्स में भी कई हमारी ऐसी चीजें होती हैं जो समर्स में अवेलेबल नहीं होती हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मली ऐसे करते हैं ना कि जो विंटर की चीजें होती हैं हम उनको ड्राई कर लेते हैं टोटली। ओके, हम उनको टोटली ड्राई कर लेते हैं एंड देन वी कैन यूज देम इन द समर सीजन व्हेनेवर वी वांट। ओके, सो दिस इज द मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन।